Hey guys, welcome back to my channel again. I hope you guys have been doing great. I'm super excited to share my productive and a unique routine with you. So let's stay tuned and get ready with me. So here I have already ironed my clothes, and trust me, it saves your time in the morning when you have ironed your clothes beforehand. And now I am about to hop in the shower for a quick refresh. There is nothing like a good shower to kickstart your day. Alright, so right now I'm just getting my hijab ready so I can get ready for my prayer. I feel waking up for Fajr prayer, no matter how much you are feeling tired, just to worship Allah and to seek the purpose of life will make your day successful. The Prophet Muhammad ﷺ said, "No prayer is harder for the hypocrites than the Isha and Fajr prayers, but if they knew their reward, they would certainly come to the masjid, even if they had to crawl." You know what? Satan tries to limit your praying, and he is your greatest enemy. He makes you weak by limiting you from praying salah. May Allah give us strength to keep our salah and protect us from the tactics of Satan and protect us from our nafs and desires. Now if you can look, I am cleaning the countertop and stove edges while preparing my breakfast. I usually take tea before my main meal. I will enjoy my breakfast in the serene nature. I usually sit there in the veranda. This is my favorite spot to unwind myself with perfect nature when the weather is nice and fresh. So we will look the trees and plants through the grills. You can see I usually gaze from this side. So now I thought to have some proteins, and eggs could be the best option for me. So हम यहाँ पर अपना अब अंडा इंजॉय करेंगे. So guys, अंडा बहुत लंबा हो गया. Literally I cannot speak continuously in English, but I have realized that when you speak English and you make videos in English, your English language improved a lot, and this is a very very good way to improve your English. So हम आते हैं वापस अपने व्लॉग में. So I was thinking कि क्यों ना मैं आपसे ये चीज़ स्पॉट करवाऊँ कि कहाँ पर मैं I am making mistake. So like where I am doing blunder. So it was the blunder side, but you know I was like frustrated. So I feel like we as a not a native speaker in English, we sometimes make blunder, and हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलें. सो हेयर आई एम रीडिंग कुरान. ठीक है, यहाँ मैं कुरान पढ़ रही हूँ, एंड दिस इज़ माई बेस्ट रूटीन वेयर आई रीड कुरान. आई रीड कुरान इन इंग्लिश so it can help me in learning not only my deen, also I can influence people around the globe about my deen, that how it is a very very beautiful religion. So here I am reading the verse. So it is from the Surah Dawn. It has 30 verses and it is very beautiful surah. कभी आप इस चीज़ को पढ़िएगा, द डॉन सूरा. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो सुबह का टाइम था, मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाली सूरत ट्राई करते हैं, एंड मैं इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ. उसके बाद मैं इसको पढ़ती हूँ एक कॉन्टेक्स्ट में कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि ये क्यों जो है वो वाई इट वाज रिवील, एंड सम ऑफ द मेन थीम्स के अलावा उसका टाइम पीरियड क्या था. और यू कैन आल्सो सी यहाँ पर कुछ दुआएं भी हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, और ये कुछ मेरे पास अल्लाह के मैंने यहाँ पर नेम्स लिखे हैं. आई एम राइटिंग एयर ताकि मुझे ये याद हो सकें. एंड नाउ आई एम रीडिंग. दिस इज़ माई रीडिंग सेक्शन. यहाँ पर मुझे पढ़ना था, और आई वॉज रीडिंग ए बुक, एंड हेयर आई एम प्रिपेयरिंग डिफरेंट सीवीज़. सो यहाँ पर ये सीवी स्पेसिफिकली मैं आपको दिखा रही हूँ. आई हैव टू अप्लाई for some jobs. So इसकी भी एक अलग स्टोरी है. I will tell you guys कि ये क्या स्टोरी है, and I am preparing myself beforehand. सो आई थिंक कि जब आपने कहीं भी जाना हो और आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, आपको अपने कपड़े आयरन करके बाहर निकाल के हैंग करके रख लेने चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन द प्लेस वेयर इट शुड बी. सो यू कैन रिमाइंड योर सेल्फ ऑन द नेक्स्ट डे कि आपका ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू गो. सो हेयर आई एम टेकिंग सम मेडिकेशंस जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, एंड आई थिंक
ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो आई हैव टू टेक सम मेडिकेशंस. And now you can see I am going outside for my some important work. So I will also tell you guys in the next video कि क्या हुआ था, क्या पंगे पड़े थे और मेरे साथ क्या हुआ. I will surely share it with you guys, but पता नहीं शेयर करना चाहिए, बहुत बैड स्टोरी है. Now मुझे यहाँ पर ना मैं एक लेयर्स बेकरी में चली गई थी. तो वहाँ के जो गार्ड अंकल थे, ही वॉज़ लाइक स्टेयरिंग एट मी. मुझे खाना नहीं था बिकॉज़ आई वॉज़ ऑन डाइट, बट ही वॉज़ लुकिंग एट मी इन द वे कि मुझे ये बाय करना पड़ा. तो मैंने ये ख़रीद लिया. मैंने कहा उफ़, मैंने बाय तो नहीं करना था. और इन मॉर्निंग के अंदर आपको ये बिल्कुल भी इस तरह के बेकरी आइटम्स नहीं ट्राई करने चाहिए. आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर इट, बट वो ऐसे देख रहा था कि मुझे बाय करना पड़ गया. कह रहा था मैम आप कुछ बाय करना चाहेंगी या कुछ आप अंदर विज़िट करना चाहेंगी. साथ ही रेस्टोरेंट था. तो मैंने कहा नो, मैं रेस्टोरेंट तो नहीं जाऊँगी, मैं चलो बेकरी चले जाती हूँ. सो मैंने वहाँ से चॉकलेट कपकेक्स लिए थे और मैंने लिटरली एक ही चॉकलेट कपकेक ट्राई किया और वो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया गया बिकॉज़ माई टेस्ट बड्स हैज़ चेंज्ड. आई नाउ लाइक मोर पाइनएप्पल केक और ये बहुत कम मुझे अच्छी जगह से मिलता है. और यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, जब भी वो केक लेकर आते हैं, इट इज़ यूजुअली क्या होता है कि वो चॉकलेट केक होता है. और लिटरली मेरे बिल्कुल चॉकलेट केक इज़ वेरी वेरी हैवी फॉर मी. उसको खाते ही मुझे बहुत ज़्यादा मेरा स्टमक हैवी हो जाता है. बट पाइनएप्पल केक ये बहुत मज़ेदार होता है. नाउ इफ़ यू कैन लुक, आई एम प्रिपेयरिंग यहाँ पर कुछ मील. बहुत मुझे भी नहीं पता कि ये इतनी पुरानी वीडियो है, बट आई एम पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ. हाँ, ये मैंने बनाया है आलू गोश्त. ये मैं जैसे ही मुझे घर आना था तो मुझे ये काम करना था. आई वॉज़ फीलिंग वेरी हेक्टिक, बट मुझे खाना भी बनाना था. तो ये मैंने खाना बनाया और ये है हमारे पास आलू गोश्त. और ये इट वॉज़ सो अमेजिंग. ये बहुत मज़ेदार था. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था. मुझे इसकी रेसिपी नहीं पता थी, ना मैंने यूट्यूब से देखा, ना मैंने कहीं से देखा. मैंने ख़ुद से बना लिया और यहाँ पर है हमारे पास.